of our unit, that is the main definition. उसको हम क्या बोलते थे? Main definition. So this is your main definition of the our unit. Yes or no, everybody? Yes, sir. Okay. So there are two sufficient conditions for the existence of the Laplace transform. Which are they? Number one is function should be piecewise continuous and function should be exponential order. Okay, so we do the piecewise continuous and exponential order function for this function f of t is equal to t. How to check this is the exponential order function? So you can check by the limit concept. What is the concept? Limit of t tends to infinity e raised to minus alpha t f of t is finite, then you can say that that function is exponential order function. If it is infinite or not finite, then you can say that it is the not an exponential order function. Okay, everybody? Then we already done this part. Okay, so this is f of t is equal to t. तो आपको लिमिट में f of t की जगह पे t रिप्लेस करना है ना? सो यहाँ पे आप t रिप्लेस करेंगे तो आपको हमने कन्वर्ट किया था t अपॉन e रेज टू अल्फा t, दैट इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म. सो लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन अल्फा इनटू e रेज टू अल्फा t. If you substitute t is equal to infinity, then you will get your 1 upon infinity, that is 0, and 0 is finite number, है ना? So finite number means we can say that it is an exponential order function. Understand, everybody? Yes, sir. Okay, now second thing, yes, then we derive the Laplace transform for usual function. First one is the Laplace transform 1. So Laplace transform 1 is nothing but 1 upon s. Laplace transform e raised to minus at क्या हमने derive किया था? 1 upon s plus a. Laplace transform e raised to at 1 upon s minus a. Laplace transform t raised to n, we have the two formula, gamma n plus 1 divided by s raised to n plus 1 for n greater than minus 1, and n factorial divided by s raised to n plus 1 for n is a positive integer and s greater than 0. So we have both the formula for Laplace transform t raised to n, and we discuss all these things. Then these are the most important formula for the next part of our unit, that is the Laplace transform cos at and Laplace transform cos sin at. Okay, so Laplace transform integration e raised to at sin bt dt will be e raised to at upon a square plus b square a sin bt minus b cos bt, and integration e raised to at cos bt dt is equal to e raised to at upon a square plus b square a cos bt plus b sin bt. So these are the formula for next part. Yes, you can see we also derive the Laplace transform of sin at. It is nothing but a upon s square plus a square. Yes or no, everybody? Sin? No, not defined. हाँ, इसमें नहीं, दिस वन इज जीरो ना, e रेज टू माइनस इंफिनिटी होगा ना ये, इसकी वजह से वो जीरो है. मीन्स e रेज टू माइनस इंफिनिटी है ना, e रेज टू माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो. ओके ओके, देन नेक्स्ट इज Laplace transform of cos at s upon s square plus a square, sin hyperbolic at a upon s square minus a square. Laplace transform of cos hyperbolic at क्या होगा? s upon s square minus a square. We derive all the formula. Yes or no, everybody? किया था ना हमने? Yes, sir. What about others? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Okay, then we go for the linearity property of the Laplace transform. What is that? Laplace transform a f of t plus b g of t is equal to a into Laplace transform f of t plus b into Laplace transform g of t. So we have this linearity property, means you can common the constant and you can split the Laplace transform, या फिर you can apply the Laplace transform individually. Okay, means आप individually Laplace transform operate कर सकते हैं. ओके, दैट इज द लिनियरिटी प्रॉपर्टी, उसको भी हमने प्रूव किया था. देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मींस क्या था? मैंने आपको बताया था कि इफ योर
Laplace, if you want to find the Laplace transform of e raised to at into function, means जो भी function दिया है, then you have to find out first Laplace transform of f of t, and in that Laplace transform of f of t you have to replace s by s minus a. That is your first shifting property. Yes or no? Yes sir. Then yes, उससे हमने बहुत सारी फॉर्मूला भी डिराइव किया था. लाप्लास ट्रांसफॉर्म e raised to at into 1 upon s minus a, e raised to at into t raised to n, गामा n plus 1 डिवाइड बाय s minus a. देखो जहां जहां पर भी s था वहां पे हमारा क्या हो गया, s minus a हो गया. देखो क्योंकि e raised to at मल्टीप्लिकेशन में, इसीलिए e raised to at मल्टीप्लिकेशन में, इसीलिए. Then is it okay? Everybody understand? Yes sir. Then next one is the differentiation and integration of transform. That means Laplace transform t raised to n into f of t. Means अगर आपके पास देखो यहाँ पे इसमें क्या हुआ, t raised to n फर्स्ट शिफ्टिंग में e raised to at मल्टीप्लिकेशन में था. Now we have the function with t raised to n. Means अगर आपके पास t से मल्टीप्लाई है तो you have to do minus 1 raised to n into nth derivative. Okay. nth derivative s आएगा, yes, s raised to nth derivative of Laplace transform of f of t. मीन्स आपको f of t का Laplace transform जो भी मिले उसका nth डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s फाइंड करना है इनटू माइनस 1 raised to n. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय t raised to n प्रॉपर्टी. इज इट ओके? मीन्स इफ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इफ यू हैव द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इनटू साइन 3t, so how you can find the Laplace transform of this one? Simply you have to minus 1 square d square upon ds square and Laplace transform of sin 3t, because our basic function is sin 3t. So first find out this one, differentiate it 2 times and multiply by minus 1 square. Understand? Everybody understand? Online में? Yes sir. Yes sir. Okay. Then डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी. ओके, उससे पहले चेंज ऑफ स्केल यहाँ पे दिया है. चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी यूज्ड इन एवरी एग्जांपल. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एफ ऑफ एस बाय ए. तो ये दिस इज सिमिलर टू फर्स्ट शिफ्टिंग. तो देखो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी मीन्स वी हैव दिस शिफ्टिंग ऑपरेटर ए टी. तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिर्फ you have to find out Laplace transform of f of t and replace in that h tends to s by a and divide by constant a. Okay, that is the change of scale property, but we have no direct example of this. We use this in every example. For example आपको बता दूं, sin 3t का मुझे Laplace फाइंड करना है. तो यहाँ पे sin 3t में चेंज ऑफ स्केल हुआ, मीन t की जगह पे क्या आया, 3t आया. सो आपको उसी हिसाब से आपको यहाँ पे यूज करना है. बट वी हैव द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑलरेडी, सो वी कैन गो थ्रू डायरेक्ट ऑल्सो. ओके, और यू कैन गो विद द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ऑल्सो. दैट इज नो इश्यू. ओके, नेक्स्ट इज division by t property. It is very useful property. So you can see that Laplace transform f of t divide by t, only one t, not t square t cube. Okay, t square t cube होता है, it is not exponential function, so you cannot find out for the t square and t cube. Only t we have. So if you have the f of t upon t, then simply go through it. Integration s to infinity Laplace transform of f of t into ds. ओके, जहां पे हमने t मल्टीप्लीकेशन में था तो क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया था. यहाँ पे डिवीजन बाय t है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म f of t इन बिटवीन s टू इंफिनिटी. इज इट ओके? ओके एवरीबॉडी? Yes sir. Yes sir. Okay.
Then these are the examples for that. We already done it, है ना. फर्स्ट शिफ्टिंग के लिए भी किया था. f of t is equal to b raised to t, t raised to n प्रॉपर्टी के लिए भी किया था हमने, डिवीजन बाय t के लिए भी किया था. जो भी हमने स्टडी किया है वो एक बार रिफर कर लेना. और इफ यू हैव डाउट देन प्लीज कांटेक्ट मी. नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, दिस इज वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट. सो इसमें कुछ नहीं करना है. वी हैव द फॉर्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t is equal to integration 0 to infinity f of t e raised to minus st dt. okay, now for example फर्स्ट देखते हैं हम. फर्स्ट जो एग्जांपल है उसके लिए. सो यहाँ पे फंक्शन के कितने पार्टीशंस करके दिए हैं? 2 पार्टीशंस. ओके, सो फर्स्ट 0 to 4 and second one is 4 to infinity. yes or no? yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, now what is the value of function in 0 to 4? It is t. So replace here t into e raised to minus st dt plus 4 to infinity. 4 to infinity means 4 to infinity t greater than 4, that is 5. So 5 into e raised to minus st dt. Now integrate 2 times, है ना. यहाँ पे 2 बार यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको करना है. फर्स्ट वन प्लस करके सेकंड वन. Whatever you get, that is your Laplace transform of the first example. Similarly, you can define for the second and third. This method is known as the discontinuous function. Discontinuous function means you have the function with the piecewise continuous and splitting way. Okay, means split करके दिया है आपको 2 times 3 times. तो डरना नहीं है, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है. फॉर एग्जाम्पल 3 times स्प्लिट करके दिया है तो कैसे करेंगे? थर्ड इंटीग्रेशन ऐड हो जाएगा ना. ओके, और जो भी उसका फंक्शन होगा वो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, इनटू e raised to minus st dt आ जाएगा. ओके, डन एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स जो हमने लास्ट में यूज किया था. लाप्लास ट्रांसफॉर्म f dash t, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो s से स्टार्ट करना है. s लाप्लास ट्रांसफॉर्म f of t माइनस f of 0. 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन है तो s स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे. s स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म f of t माइनस s f of 0 माइनस f dash 0. ये हमने कहाँ पे यूज किया? सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, किया ना हमने. वहां पे y था, यहाँ पे f है. s अगर nth ऑर्डर है तो ऊपर भी हम उसके लिए डिफाइन कर सकते हैं. Then Laplace transform integral of the function, that means Laplace transform f of t is equal to f of s है. Then Laplace transform of 0 to t f of u du is nothing but Laplace transform of f of t divided by s. Okay, means fs divided by s, means इंटीग्रेशन में है तो आपको यहाँ पे Laplace transform f of t लिखना है, divided by s कर देना है. So is there any doubt, any question up to here? Anybody? No, Okay, if you read this then you will understand very well. Next very important topic is Laplace transform of periodic function. So this is similar to the Laplace transform of discontinuous function, but there is a formula for the periodic function. And what is this? 1 upon Laplace transform of periodic function f of t is equal to 1 upon 1 minus e raised to minus sp 0 to p f of t e raised to minus st dt. That is the formula for the Laplace transform of periodic function. You can see here. Okay, आपको क्या करना है? सिर्फ p पीरियड फाइंड करना है और यहाँ पे रिप्लेस करना है और ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है. That is the way to find the solution. अब periodic function कैसे पता चलेगा? You have the two choice. Number one, by the definition f of t plus p equal to f of t. तो यहाँ पे p is equal to 4 हो गया, तो p is equal to 4 यहाँ पे रख के इसका सॉल्यूशन फाइंड कर दो. ओके, अब 0 to p है तो 0 to 4 जो हुआ तो 0 to 4 को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख पाएंगे 0 to 2 plus 2 to 4. ओके, that is the Laplace transform of periodic function. Understand everybody? Is it okay? yes, sir. या ये एंड डिसकंटिन्यूअस दोनों में थोड़ा चेंज है. यहाँ पे 0 to 4 पे स्टॉप हो जाता है, वहां पे कहाँ तक जाता है? 0 to infinity तक जाता है. यस और नो? है ना.
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो डिसकंटिन्यूअस का अगर एग्जांपल है, सॉरी डिसकंटिन्यूअस सो डिसकंटिन्यूअस के एग्जांपल में लिमिट जो है वो 0 टू इंफिनिटी तक जाएगा। एंड जब पीरियोडिक फंक्शन का एग्जांपल है, तो पीरियोडिक फंक्शन में 0 टू कहाँ तक जाएगा, कोई फिक्स वैल्यू तक, कहाँ तक जाएगा, फिक्स वैल्यू तक, दैट मीन्स 0 टू 4, 0 टू 2, 0 टू 1, ओके, फाइनाइट वैल्यू तक जाएगा, देन इट इज द एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। एंड डिसकंटिन्यूअस में तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक ही जाएगा, डन। सो यू कैन सेपरेट बोथ द थिंग्स, डोंट कंफ्यूज, ओके। पार्शियल फ्रैक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या है, सो पार्शियल फ्रैक्शन कब कर सकते हैं, सो डिग्री ऑफ p of x लेस और इक्वल टू डिग्री ऑफ q of x, देन यू कैन डू द पार्शियल फ्रैक्शन। उसमें देयर आर 4 केसेस। फर्स्ट केस फॉर द नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, तो उसमें क्या लिखेंगे, a अपॉन s माइनस a प्लस b अपॉन s माइनस b प्लस c अपॉन s माइनस c। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, दैट मीन्स s माइनस a अगर n टाइम्स है तो कैसे करेंगे, a1 अपॉन फर्स्ट टाइम प्लस a2 अपॉन सेकंड टाइम स्क्वायर, ओके, स्क्वायर प्लस a3 अपॉन थर्ड टाइम एंड सो ऑन, ओके, ऐसे करके सेकंड केस है। थर्ड केस में आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर दिए होंगे लेकिन नॉन रिपीटेड, ओके, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, तो उसमें होगा as प्लस b अपॉन s स्क्वायर प्लस as प्लस b, cs प्लस d अपॉन s स्क्वायर प्लस cs प्लस d, ओके। देन केस नंबर 4 में रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, ओके। सो रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर मींस यहाँ पे s स्क्वायर प्लस as प्लस b, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट आएगा, फर्स्ट टाइम as प्लस b अपॉन फर्स्ट टाइम प्लस cs प्लस d अपॉन सेकंड टाइम्स एंड सो ऑन। इसका एग्जांपल 100% पूछा जाता है, ओके। सो कीप इन योर माइंड पार्शियल फ्रैक्शन का। अब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करें तो जो भी हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में स्टडी किया था उसका पूरा उल्टा प्रोसेस, उसको हम इनवर्स लाप्लास बोलते हैं, ओके। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 था 1 अपॉन s, तो दोनों में इनवर्स कर दिया है ना। सिमिलरली 1 अपॉन s स्क्वायर के लिए इनवर्स हो जाएगा, 1 अपॉन s माइनस a के लिए इनवर्स, है ना। तो सारी फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो वी डोंट गो फॉर दैट, ओके। प्रॉपर्टी भी वही का वही रहेगा, सिर्फ इनवर्स आ जाएगा। ये फर्स्ट शिफ्टिंग है, ओके, उल्टा करके लिखा हुआ है ना। लाप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ s माइनस a इज इक्वल टू e रेज़ टू at इनटू हाफ ऑफ t। अब इसमें कितने टाइप्स के एग्जांपल पूछे जाते हैं, तो इसमें दो तरीके के एग्जांपल्स हैं। इनवर्स लाप्लास में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एग्जांपल। नंबर 1 बाय फॉर्मूलाज, सीधा फॉर्मूला यूज करके आ जाएगा। नंबर 2 पार्शियल फ्रैक्शन, एग्जांपल ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। एंड नंबर 3 इज द कॉन्वोल्यूशन, ओके। हम तीनों टाइप के एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, तो गो थ्रू इट, ओके। अब फॉर्मूला में क्या होगा, जो भी यहाँ पे हमने आगे फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टी डिस्कस किया इनवर्स लाप्लास के लिए, है ना, वो सारी फॉर्मूला यूज करके आपको फाइंड करना है। दैट इज लाइक दिस वन, सेकंड वन जो है उसका फॉर्मूला, फर्स्ट एंड सेकंड। अब पार्शियल फ्रैक्शन मींस आपको पहले जितने भी डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन होते हैं उतने फैक्टराइजेशन करो, है ना। उसके बाद उसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करो। मींस लीनियर है तो a अपॉन फर्स्ट प्लस b अपॉन सेकंड लीनियर, अगर स्क्वायर वाला है तो a अपॉन फर्स्ट टाइम प्लस b अपॉन सेकंड टाइम, दैट मींस s माइनस a होल स्क्वायर। अगर s स्क्वायर प्लस as प्लस b है तो as प्लस b अपॉन s स्क्वायर प्लस as प्लस b, ओके। उस हिसाब से आपको पार्शियल फ्रैक्शन के 4 केसेस के अकॉर्डिंग एग्जांपल पूछा जाता है। एंड थर्ड वन इज द कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन तो हमको पता ही है, ओके। सो आई थिंक अप टू हियर इन योर फर्स्ट इंटरनल। देखो तो फर्स्ट इंटरनल के सिलेबस में क्या क्या है। So everybody understand up to here? Yes, sir. Yes, sir. Any question? No, sir. सर यहाँ तक ही आएगा ना सर? हाँ, मैं वही देख लेता हूँ, एक मिनट, वो देख रहे हैं। सर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हाँ, इनवर्स लाप्लास तक ही है ना। यस सर। यस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सर, हाँ बोलो। अरे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के वो अपना वो रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड नहीं किया तो वो कर दो ना।